Hello students, I am Sudhir Tomar. Today we are going to study our third chapter from our textbook Supplementary Reader in English, Footprints Without Feet. The name of the chapter is The Midnight Visitor, written by Robert Arthur. The Midnight Aadhi Raat Visitor. The Midnight Visitor means Agantuk. Aadhi Raat ka Agantuk. In this story, Ausable is a secret agent. Ausable एक secret agent है. Secret agent means गुप्तचर. वह एक गुप्तचर है. He is expecting to get an important paper. वह एक महत्वपूर्ण पत्र प्राप्त करने की प्रतीक्षा कर रहा है. Max enters his room. Max उसके रूम में एंटर करता है. He wants to get that paper from Ausable. वह Ausable से उस पत्र को प्राप्त करना चाहता है. But Ausable outwits him. लेकिन Ausable उसे मात दे देता है. Outwit means defeat somebody with cleverness. Let's start the chapter. The Midnight Visitor. Ausable did not fit any description of a secret agent Fowler had ever read. Ausable किसी भी तरह से एक सीक्रेट एजेंट के विवरण में फिट नहीं बैठता जैसा कि फॉलर ने पढ़ रखा था. Following him down the musty corridor of the gloomy French hotel where Ausable had a room, Fowler felt let down. Musty, दुर्गंधपूर्ण, स्मेलिंग डैम्प, कॉरिडोर गलियारा, ग्लूमी अंधकारपूर्ण. अंधकारपूर्ण फ्रेंच होटल के एक दुर्गंधपूर्ण गलियारे में ऑसिबल के पीछे जाते हुए जहां ऑसिबल का रूम था, फॉलर ने निराशा महसूस की. लेट डाउन मीन्स डिसअपॉइंटमेंट. It was a small room on the 6th and top floor and scarcely a setting for a romantic adventure. यह एक छोटा रूम था 6th छठे और टॉप फ्लोर पर, and scarcely और मुश्किल से ही एक सेटिंग या सेटिंग here setting means atmosphere वातावरण, for a romantic adventure जहाँ मुश्किल से ही रोमांटिक रोमांचकारी एडवेंचर का वातावरण था. Ausable was for one thing fat, very fat. Ausable, first of all, he was very fat. वह काफ़ी मोटा था. And then there was his accent, और फिर वहाँ उसकी accent. Accent means speaking tone, बोलने का लहजा. Though he spoke French and German possibly, यद्यपि वह काम चलाऊ जर्मन और फ्रेंच बोलता था. Possibly means ठीक ठाक काम चलाऊ, reasonably. He had never altogether lost the American accent he had brought to Paris from Boston 20 years ago. उसने अपना जो अमेरिकन एक्सेंट था वो नहीं खोया था. He had brought to Paris, जो वो पेरिस लेकर आया था, from Boston से 20 साल पहले. You are disappointed, Ausable said Weasley over his shoulder. आप निराश हैं, Ausable ने हाफते हुए शोल्डर के ऊपर से कहा. Weasley to breathe noisily. You were told that I was a secret agent, a spy dealing in espionage and danger. आपको बताया गया कि मैं एक सीक्रेट एजेंट हूँ, गुप्तचर, a spy या जासूस, dealing in espionage and danger जो स्पाइंग जासूसी और खतरे में डील करता है. Espionage means act of spying, जासूसी. You wish to meet me because you are a writer, young and romantic. आपकी मुझसे मिलने की इच्छा थी क्योंकि आप एक राइटर हैं, लेखक हैं, young and romantic, युवा और रोमांचकारी. You envisioned mysterious figures in the night, the crack of pistols, drugs in the wine. You envision means assumed. आपने रात को रहस्यमयी फिगर्स की कल्पना की, पिस्टल्स की आवाज़ की, वाइन में ड्रग्स की. Instead, you have spent a dull evening in French Hall with a sloppy fat man.
इसके बजाय आपने एक नीरस शाम एक फ्रेंच म्यूज़िक हॉल में एक मोटे पिलपिले व्यक्ति के साथ बिताई. डल, नीरस, स्लॉपी, पिलपिला, फैट, मोटा. Instead of having messages slipped into his hand by dark-eyed beauties, gets only a prosaic telephone call making an appointment in his room. Instead of having messages, जिसके हाथों में ब्लैक आइड ब्यूटीज़ के हाथों संदेश आने की बजाय मुलाकात का समय प्राप्त करने के लिए केवल साधारण टेलीफोन कॉल आते हैं. प्रोजैक मीन्स ऑर्डनरी, साधारण. यू हैव बीन बोर्ड, आप बोर हो गए होंगे. द फैट मैन चकल टू हिमसेल्फ एज ही अनलॉक्ड द डोर ऑफ हिज रूम एंड स्टूड असाइड टू लेट हिज फ्रस्ट्रेटेड गेस्ट एंटर. द फैट मैन, मोटा व्यक्ति, चकल टू हिमसेल्फ, मन ही मन मुस्कुराया. चकल्ड, स्माइल्ड. एज ही अनलॉक्ड द डोर ऑफ हिज रूम, जैसे उसने अपने रूम का दरवाज़ा खोला. एंड स्टूड असाइड टू लेट हिज फ्रस्ट्रेटेड गेस्ट एंटर, और एक तरफ खड़ा हो गया अपने उस निराश मेहमान को अंदर आने देने के लिए. फ्रस्ट्रेटेड, निराश. यू आर डिसइल्यूजन्ड, आप भ्रम मुक्त हैं. ऑसेबल टोल्ड हिम, ऑसेबल ने उसे बताया. बट टेक चेयर माई यंग फ्रेंड, लेकिन मेरे युवा मित्र, आप खुश रहें. प्रेजेंटली विल सी अ पेपर, ए क्वाइट इम्पोर्टेंट पेपर. अभी आप एक पत्र देखेंगे. ए क्वाइट इम्पोर्टेंट पेपर, एक महत्वपूर्ण पत्र, पेपर. फॉर विच सेवरल मैन एंड वीमेन हैव रिस्क्ड देयर लाइव्स, कम टू मी. जिसके लिए बहुत से मैन और वीमेन ने अपने जीवन को जोखिम में डाला है. कम टू मी, मेरे पास आओ. सम डे सून दैट पेपर मे वेल अफेक्ट द कोर्स ऑफ हिस्ट्री. जल्दी ही किसी दिन यह पत्र इतिहास के मार्ग को प्रभावित कर सकता है. अफेक्ट, प्रभावित करना, कोर्स, मार्ग. इन दैट थॉट इज ड्रामा, इज देयर नॉट, क्या इस विचार में नाटक है, क्या नहीं है. एज ही स्पोक, ऑसेबल क्लोज द डोर बिहाइंड हिम, जैसे उसने बोला, जैसे ही ऑसेबल बोला, ऑसेबल ने अपने पीछे दरवाज़ा बंद किया. देन ही स्विच्ड ऑन द लाइट, फिर उसने लाइट को जलाया. एज द लाइट केम ऑन, और जैसे ही लाइट जली, फॉलर हैड हिज फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल ऑफ द डे. फॉलर ने उस दिन का अपना पहला वास्तविक रोमांच देखा. ऑथेंटिक मीन्स रियल, थ्रिल, रोमांच. फॉर हाफ वे अक्रॉस द रूम, कमरे के ठीक बीच में, अ स्मॉल ऑटोमेटिक पिस्टल इन हिज हैंड्स टुड अ मैन, एक व्यक्ति छोटी ऑटोमेटिक पिस्टल अपने हाथ में लिए खड़ा था. ऑसेबल ब्लिंक्ड अ फ्यू टाइम्स. ब्लिंक मीन्स पलक झपकाना, क्लोजिंग एंड ओपनिंग ऑफ द आइज. ऑसेबल ने अ फ्यू टाइम्स, कुछ अपनी आंखों को झपकाया, यानी अपने पलकें झपकाई. अ फ्यू टाइम्स, कई बार. मैक्स, ही वीज्ड, यू गेव मी अ क्वाइट स्टार्ट. मैक्स, ही वीज्ड मीन्स हाँफते हुए. यू गेव मी अ क्वाइट स्टार्ट, कि तुमने मुझे हैरान कर दिया है. आई थॉट यू आर इन बर्लिन, मैंने सोचा कि तुम बर्लिन में थे. व्हाट आर यू डूइंग हियर इन माई रूम, तुम मेरे रूम में यहाँ क्या कर रहे हो. मैक्स वॉज स्लेंडर, a little less than tall, with features that suggested slightly the crafty pointed countenance of a fox. मैक्स, जो कि एक दुबला पतला, ज़्यादा लंबा नहीं था, with features that suggested slightly, उसकी फीचर्स ऐसे स्थिति में था जैसे कि that suggested slightly the crafty, clever, जैसे एक चालाक. उसके चेहरे से एक लोमड़ी की शक्ल का आभास होता था. काउंटेनेंस, फेस. देयर वॉज अबाउट हिम असाइड फ्रॉम द गन नथिंग एस्पेशली मिनेंसिंग मीन्स डेंजरस. वहाँ उसके हाथ में गन के अलावा कोई भी चीज़ खतरनाक नहीं थी. द रिपोर्ट, ही मर्मर्ड, वो रिपोर्ट, ही मर्मर्ड, वह बुड़बुड़ाया. द रिपोर्ट दैट इज़ बीइंग ब्रॉट टू यू टुनाइट, वह रिपोर्ट जो आज रात आपके पास लाई जा रही है. कंसर्निंग सम न्यू मिसाइल्स, जो कुछ नई मिसाइल से संबंधित है. आई थॉट आई वुड टेक इट फ्रॉम यू, मैंने सोचा मैं आपसे इसे ले लूँ. इट विल बी सेफर इन माई हैंड्स देन इन योर्स,
यह आपके हाथों के मुकाबले मेरे हाथों में अधिक सुरक्षित रहेगी। ऑसिबल मूव टू एन आर्म चेयर एंड सेट डाउन हैवीली। ऑसिबल एक आर्म चेयर की ओर गया और बड़े तेजी के साथ बैठ गया। आई एम गोइंग टू रेज द डेविल विद द मैनेजमेंट दिस टाइम। मैं इस बार मैनेजमेंट से काफ़ी लड़ने वाला हूँ। एंड यू कैन बैट ऑन इट, आप इस पर शर्त लगा सकते हैं। ही सैड ग्रिमली, उसने स्ट्रांगली ऐसा कहा। ग्रिमली, स्ट्रांगली। दिस इज द सेकेंड टाइम इन अ मंथ दैट समबडी हैज़ गॉट इन टू माई रूम थ्रू दैट रेजिडेंस ऑफ बालकोनी। यह एक महीने में दूसरी बार हुआ है कि कोई व्यक्ति उस बालकोनी की परेशानी के कारण मेरे रूम में एंटर हुआ। न्यूजेंस मीन्स annoyance, obstacle. Fowler's eyes went to the single window of the room. Fowler's की आंखें रूम की सिंगल विंडो की ओर गई। It was an ordinary window, एक साधारण विंडो थी, against which now the night was pressing blackly, जहाँ से अब रात काफ़ी काली हो जा रही थी, मीन्स रात आगे बढ़ रही थी। बालकोनी, मैक्स सैड विद राइजिंग इन्फ्लेक्शन। राइजिंग इन्फ्लेक्शन मीन्स विद ईगरनेस, उत्सुकता के साथ मैक्स ने पूछा, बालकोनी? नो, पास की, नहीं, मेरे पास एक गुप्त चाबी है। आई डिड नॉट नो अबाउट द बालकोनी, मैं बालकोनी के बारे में नहीं जानता था। बालकोनी मीन्स छज्जा। इट माइट हैव सेव्ड मी सम ट्रबल हैड आई नोन, अगर मैं जानता तो इससे मेरी कुछ परेशानी बच जाती। इट इज़ नॉट माई बालकोनी, ऑसिबल सैड विद एक्सट्रीम इरिटेशन। बड़े गुस्से से ऑसिबल ने कहा, यह मेरी बालकोनी नहीं है। इट बिलोंग्स टू द नेक्स्ट अपार्टमेंट, यह दूसरे रूम से बिलोंग करती है। ही ग्लांस्ड एक्सप्लेनेटरीली एट फॉलोअर, उसने बड़ी व्याख्यात्मक दृष्टि से फॉलोअर की ओर देखा। यू सी, आप जानते हैं, ही सैड, उसने कहा, दिस रूम यूज टू ए पार्ट ऑफ लार्ज यूनिट, कि यह कमरा एक बड़ी इकाई का हिस्सा हुआ करता था। एंड द नेक्स्ट रूम, और अगला कमरा, थ्रू दैट डोर देयर, उस डोर में से, यूज टू बी द लिविंग रूम, एक लिविंग रूम हुआ करता था। इट हैड द बालकोनी विच एक्सटेंड्स अंडर माई विंडो नाउ, यहाँ एक इस रूम में बालकोनी होती थी जो मेरी विंडो तक आती है। यू कैन गेट ऑन टू इट फ्रॉम द एम्प्टी रूम 2 doors डाउन, नीचे से आप यहाँ मेरे नीचे जो 2 खाली रूम्स हैं उनसे आप यहाँ तक आ सकते थे। यू कैन गेट ऑन इट, इस पर आ सकते थे। एंड समबडी डिड लास्ट मंथ, और किसी ने पिछले महीने ऐसा किया। द मैनेजमेंट प्रॉमिस टू ब्लॉक इट ऑफ, मैनेजमेंट ने मुझसे वायदा किया था इसे बंद करने का, बट दे हैव नॉट, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। मैक्स ग्लांस्ड एट फ्लाउलर हु वाज स्टैंडिंग स्टिफली नॉट फार फ्रॉम ऑसिबल। स्टिफली मीन्स स्टिफली, सख्ती से, दृढ़ता से। मैक्स ने फॉलोअर की ओर देखा जो बड़ी सख्ती से पॉसिबल से ज़्यादा दूर नहीं खड़ा था। एंड वेव द गन विद कमांडिंग जेस्चर, और गन को एक आदेशात्मक संकेत में लहराया। जेस्चर संकेत, कमांडिंग आदेशात्मक। प्लीज़ सिट डाउन, कृपया बैठ जाएं। ही सैड, उसने कहा, वी हैव ए वेट ऑफ हाफ एन आवर, हमें अभी आधा घंटा और इंतजार करना होगा। आई थिंक, मैं सोचता हूँ, मैं ऐसा मानता हूँ कि आधा घंटा और इंतजार करना होगा। 31 minutes, ऑसिबल सैड मूडली, हियर मूडली मीन्स सैडली, उदासी से ऑसिबल ने कहा, 31 मिनट। द अपॉइंटमेंट वॉज फॉर 12:30, अपॉइंटमेंट 12:30 की थी। आई विश आई न्यू हाउ यू लर्न अबाउट द रिपोर्ट मैक्स, मेरी इच्छा थी कि मैं जानूँ मैक्स कि आपको इस रिपोर्ट के बारे में कैसे पता चला। द लिटिल स्पाई स्माइल्ड एविली, छोटा स्पाई जासूस बड़ी दुष्टता के साथ मुस्कुराया। एंड वी विश वी न्यू हाउ योर पीपल गॉट द रिपोर्ट, और मेरी इच्छा थी कि मैं जान पाऊँ कि आपके लोगों को ये रिपोर्ट कैसे मिली। बट नो हार्म हैज़ बीन डन, लेकिन कोई क्षति नहीं की गई है। आई विल गेट इट बैक टू नाइट, मैं इसे आज रात वापस ले लूँगा। वट इज़ दैट, वह क्या है। हु इज़ एट द डोर, दरवाजे पर कौन है। फॉलोअर जम्प्ड एट द सडन नॉकिंग एट द डोर, फॉलोअर जो अचानक दस्तक हुई दरवाजे पर, उससे उछला। ऑसिबल जस्ट स्माइल्ड, ऑसिबल केवल मुस्कुराया। दैट विल बी द पुलिस, ही सैड, उसने कहा, यह पुलिस होगी। आई थॉट दैट such an important paper as the one we are waiting for should have a little extra protection, मैंने सोचा कि that such an important paper, कि ऐसा एक महत्वपूर्ण पत्र as the one we are waiting for, जिसके लिए हम इंतजार कर रहे हैं, should have a little extra protection, उसकी एक
अतिरिक्त सुरक्षा होनी चाहिए। आई टोल्ड देम टू चेक ऑन मी, मैंने उन्हें बताया कि मेरे पास आकर, टू चेक ऑन मी, टू मेक श्योर, ये सुनिश्चित कर लें, एवरीथिंग वॉज राइट, क्या सब कुछ ठीक था। मैक्स बिट हिज लिप्स नर्वसली, मैक्स ने घबराहट में अपने होठ को काटा। द नॉकिंग वॉज रिपीटेड, जो दस्तक थी वो दोबारा हुई। व्हाट विल यू डू नाउ मैक्स, ऑसेबल आस्क्ड, ऑसेबल ने पूछा अब आप क्या करेंगे मैक्स। इफ़ आई डू नॉट आंसर द डोर दे विल एंटर एनीवे, अगर मैं डोर पर आंसर नहीं दूंगा तो वे किसी भी तरह अंदर आ जाएंगे। द डोर इज़ अनलॉक्ड, दरवाज़ा खुला है, अनलॉक्ड है, लॉक्ड नहीं है। एंड दे विल नॉट हेजिटेट टू शूट, और वो शूट करने में नहीं हिचकिचाएंगे। मैक्स फेस वॉज ब्लैक विद एंगर एज ही बैक्ड स्वीटली टुवर्ड्स द विंडो, मैक्स का जो चेहरा था वह काला पड़ गया विद एंगर, गुस्से से। एज ही बैक्ड, जैसे ही वापस गया, स्विफ्टली क्विकली टुवर्ड्स द विंडो, विंडो की ओर। ही स्वंग ए लेग ओवर द सिल, उसने खिड़की के सिल के ऊपर से एक पैर सिल के दूसरी तरफ किया। सेंड देम अवे, उन्हें वापस भेज दो। ही वांट, वह उसने चेतावनी दी। आई विल वेट ऑन द बालकनी, मैं बालकनी पर इंतजार करूँगा। सेंड देम अवे और आई विल शूट एंड टेक माई चांसेस, उन्हें वापस भेज दो, नहीं तो मैं शूट करूँगा। एंड टेक माई चांसेस, और अपने चांसेस मीन्स अपना लक आजमाऊँगा। द नॉकिंग एट द डोर बिकेम लाउडर, जो दस्तक थी दरवाजे पर वो तेज हुई। एंड वॉइस वॉज रेज्ड, और एक आवाज़ आई, मिस्टर ऑसेबल, मिस्टर ऑसेबल। Keeping his body twisted so that his gun still covered the fat man and his guest, the man at the window grasped the frame with his free hand to support himself. Keeping his body twisted so that, अपनी बॉडी को इस तरह से मोड़ते हुए ताकि गन उस मोटे व्यक्ति और उसके मित्र दोनों को कवर कर सके। द मैन एट द विंडो, विंडो पर जो व्यक्ति था, ग्रास्प, उसने पकड़ा, द फ्रेम को विद हिज फ्री हैंड, अपने फ्री हैंड से, टू स्पॉट हिमसेल्फ, अपने आप को हिमसेल्फ स्पॉट करने के लिए। देन ही स्वंग हिज अदर लेग अप एंड ओवर द विंडो सिल, तब उसने स्वंग, अपनी दूसरे पैर को भी दूसरी ओर रखा, ओवर द विंडो सिल, और विंडो सिल पर चला गया। द डोर नॉब टर्न्ड, डोर नॉब मुड़ी, स्विफ्टली क्विकली। मैक्स पुश्ड विद हिज लेफ्ट हैंड टू फ्री हिमसेल्फ फ्रॉम द सिल एंड ड्रॉप टू द बालकनी, मैक्स ने पुश किया अपने लेफ्ट हैंड से, टू फ्री हिमसेल्फ फ्रॉम द सिल, सिल से अपने आप को फ्री करने के लिए। एंड ड्रॉप टू द बालकनी, और बालकनी से गिर गया। एंड देन, और फिर, एज ही ड्रॉप्ड ही स्क्रीम्ड वंस श्रीली, और तब एज ही ड्रॉप्ड, वह गिर गया, स्क्रीम्ड वंस श्रीली, वह एक बार तेज़ी से चिल्लाया। द डोर ओपनड एंड अ वेटर स्टूड देयर विद अ ट्रे, अ बॉटल एंड 2 ग्लासेस, दरवाज़ा खुला और एक वेटर वहाँ आया, एक ट्रे, एक बोतल और 2 ग्लासेस के साथ। Here's the drink you ordered for when you return, यहाँ आपका ड्रिंक है जो आपने ऑर्डर किया था, when you return, जब आप वापस आए। He said, उसने कहा, and set the tray on the table, और टेबल को, और ट्रे को टेबल पर रख दिया। Deftly uncorked the bottle, deftly, quickly and cleverly, deftly means cleverly, और बड़ी चालाकी के साथ बोतल को खोला। एंड लेफ्ट द रूम, और रूम से बाहर चला गया। वाइट फेस्ड फॉलोअर स्टेयर्ड आफ्टर हिम बट स्टैमर्ड द पुलिस, सफ़ेद चेहरा, वाइट फेस्ड, जो फॉलोअर का हो गया था, फॉलोअर ने उसकी ओर देखा और कहा, ही स्टैमर्ड, वह हकलाया, द पुलिस, लेकिन पुलिस कहाँ। देयर वर नो पुलिस, वहाँ कोई पुलिस नहीं थी। ऑसेबल साइड, ऑसेबल ने आ भरी। ओनली हेनरी, केवल हेनरी था, whom I was expecting, जिसकी मैं आशा कर रहा था। बट वॉन्ट दैट मैन आउट ऑन द बालकनी, लेकिन वो व्यक्ति जो बालकनी पर था। फॉलोअर ने बोलना जारी रखा। नो सैड ऑसेबल, नहीं, ऑसेबल ने कहा, ही वॉन्ट रिटर्न, ही विल नॉट रिटर्न, वो वापस नहीं आएगा। यू सी, आप जानते हैं, माई यंग फ्रेंड, मेरे युवा मित्र, देयर इज़ नो बालकनी, वहाँ कोई बालकनी नहीं है। स्टूडेंट्स, this is the explanation of our chapter, The Midnight Visitor. In the next video, we will study our next chapter. Till then, thank you. Have a nice day.